وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر ریلیف کمشنر پنجاب کا اتوار کے روز لاک ڈاؤن کا حکم۔ اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں نقل و حمل مزید محدود کرنے کا فیصلہ۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے متاثرہ اضلاع میں پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد سمیت 6 ڈویژنز کے تمام اضلاع پر پابندیاں لاگو ہوں گی۔ اتوار کے روز بازار دن 4 بجے کے بعد کھولے جا سکیں گے۔ فارمیسیز، میڈیکل سٹورز اور پیٹرول پمپس، بیکریز، کریانہ سٹورز، یوٹیلیٹی سٹورز، کال سینٹرز اور انٹرنیشنل آئی ٹی سینٹرز پر پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کو سمارٹ لاک ڈاؤن یقینی بنانے کی ہدایت۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر ریلیف کمشنر پنجاب کا اتوار کے روز لاک ڈاؤن کا حکم۔ اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں نقل و حمل مزید محدود کرنے کا فیصلہ۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے متاثرہ اضلاع میں پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد سمیت 6 ڈویژنز کے تمام اضلاع پر پابندیاں لاگو ہوں گی۔ اتوار کے روز بازار دن 4 بجے کے بعد کھولے جا سکیں گے۔ فارمیسیز، میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپس، بیکریز، کریانہ سٹورز، یوٹیلیٹی سٹورز، کال سینٹرز اور انٹرنیشنل آئی ٹی سینٹرز پر پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کو سمارٹ لاک ڈاؤن یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسموگ میں سافٹ لاک ڈاؤن۔ فیصل آباد میں پنجاب حکومت کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ضلعی انتظامیہ مارکیٹیں 3 بجے تک بند کرانے میں ناکام رہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسموگ میں سافٹ لاک ڈاؤن۔ فیصل آباد میں پنجاب حکومت کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شہریوں کو اسموگ سے بچانے کے لیے فیصل آباد سمیت 10 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، جس میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز اور کالجز آج بھی بند رہے۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفیسز اور ریونیو دفاتر بھی 3 بجے کھلے۔ واسا، پی ایچ اے، ایف ڈی اے، اسسٹنٹ کمشنر دفاتر بھی 3 بجے تک بند رہے۔ لیبر آفس، تحصیل، میونسپل کمیٹیاں، ضلع کونسل آفس بھی 3 بجے تک بند رکھے گئے۔ سوشل ویلفیئر، ایکسائز آفس، سول ڈیفنس آفس بھی 3 بجے کھولے گئے۔ تمام صوبائی سرکاری دفاتر کے عملہ کو 3 بجے سے 10 بجے تک ڈیوٹی سر انجام دینے کا حکم ہے۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی 3 بجے کھلے۔ محکمہ ماحولیات کے افسران کو فیلڈ میں اسموگ کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فیصل آباد شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں صبح کی بجائے دوپہر 3 بجے کھولنے کا حکم دیا گیا، مگر دکانداروں نے معمول کے مطابق مارکیٹیں اور دکانیں کھول لیں اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا حکم رد کر دیا۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ بھی پنجاب حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دی۔ سٹی 41 کی نشاندہی کے بعد تاجر رہنماؤں نے اپنی مدد کے تحت دکانیں بند کرا دیں اور تمام دکانداروں کو 3 بجے سے پہلے کسی صورت دکانیں نہ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے دھان کی باقیات اور دیگر فصلوں کی باقیات جلانے اور کھلے مقامات پر آگ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر وکاس بیگ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ اسموگ نے پابندیوں میں جکڑ کر رکھ دیا۔ فضائی آلودگی سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے روز بھی پنجاب کے 10 اضلاع میں سافٹ لاک ڈاؤن رہا۔ جنگ میں دھان کی باقیات جلانے، بھٹوں اور ٹرانسپورٹ سے فضائی آلودگی کے مسائل میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ روز بھی فضا میں آلودگی کی شرح معمول سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ اسموگ نے پابندیوں میں جکڑ کر رکھ دیا۔ فضائی آلودگی سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے روز بھی پنجاب کے 10 اضلاع میں سافٹ لاک ڈاؤن رہا۔ میں دھان کی باقیات جلانے، بھٹوں اور ٹرانسپورٹ سے فضائی آلودگی کے مسائل میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ روز بھی فضا میں آلودگی کی شرح معمول سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے سبب ڈپٹی کمشنر آفس، ضلع کونسل، میونسپل کمیٹی، تحصیل آفیسر، لیبر آفیسر، ایکسائز، سوشل ویلفیئر سمیت صوبائی محکمے 3 بجے تک بند رہے۔ جزوی طور پر مارکیٹس اور کاروبار مراکز بند رہے اور 3 بجے کے بعد کھل گئے۔ سرکاری نجی تعلیمی ادارے آج بھی مکمل طور پر بند رہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی اسموگ پر قابو پانے کے لیے محدود وقت کے لیے لاک ڈاؤن رہا۔ سرکاری دفاتر، نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز 3 بجے تک بند رہے۔ سرکاری دفاتر 3 بجے کے بعد کھولے گئے۔ ضلعی انتظامیہ میں سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل کرانے کے لیے متحرک رہی، جبکہ خلاف ورزی کرنے پر متعدد دکانداروں کو حراست میں لیا گیا اور وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسموگ کا روگ سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز دھواں چھوڑتی گاڑیاں، موٹر سائیکل، بھٹے فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب۔ فضا میں زہریلے دھوئیں کی آمیزش بڑھ گئی۔ محکمہ ماحولیات نے فضائی آلودگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں دھواں چھوڑتی گاڑیاں، موٹر سائیکل، بھٹے فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب۔ فضا میں زہریلی آمیزش بڑھ گئی۔ محکمہ ماحولیات نے فضائی آلودگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
मौसम सर्द होते ही स्मोक जिंदगी का रोगा बनकर धमकती है, जिसके सबब इसकी फिजा में जहरीले धुएं की आमेजिश बढ़ती जा रही है। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज है। धान की बाकियात जलाने, भट्टों और ट्रांसपोर्ट से फिजाई आलूदगी की मिसाल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 तक जा पहुंचा। महकमा माहौलियात ने आइंदा दिनों में फिजाई आलूदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। आजकल जैसे कि आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव इशू है माहौल, और बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है हर तरफ, और है भी जैसे जिस शहर से मैं उठ के आई हूँ वहाँ पे हवा की आलूदगी का सबको पता है कि कितनी वो टॉप पे पहुँची हुई है। और फैसलाबाद इवन कल मैं फैसलाबाद का AQI इंडेक्स देख रही थी, जो वो 245 AQI इंडेक्स है, विच इज़ जो कि इसको अनहेल्दी, फैसलाबाद की हवा को इस वक्त अनहेल्दी बना रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे रोज स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए, जबकि बाजार और मार्केटें दोपहर 3 बजे खुले रहेंगे। माहिर वेस्ट मैनेजमेंट मिंजा का कहना था कि फैसलाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है। शहरियों को खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जो हम लोग अपने घरों से, जो ज़्यादातर जो हमारे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें आप समझ लो कि किचन का वेस्ट है, जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, वो वेस्ट जो है जब हम लैंडफिल के ऊपर या कहीं पे भी किसी भी कूड़े के ढेर पे वैसे ही फेंक देते हैं तो जमा होता रहता है, तो उसमें से एक बहुत ही ख़तरनाक गैस निकलती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन। और इसके अलावा और भी कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि एयर क्वालिटी को ख़राब करते हैं। अगर आलूदगी से अटे माहौल की तरफ ध्यान न दिया गया तो ये कुराए अर्ज आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बनकर रह जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में नाक, कान और गले के मरीज दरबदर। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ENT डॉक्टर्स सिरे से मौजूद ही नहीं। ENT डॉक्टर्स की खाली असामियों पर ताहाल तैनाती न होने से मरीज परेशान। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में नाक, कान और गले के मरीज दरबदर। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ENT डॉक्टर्स सिरे से मौजूद ही नहीं। ENT डॉक्टर्स की खाली असामियों पर ताहाल तैनाती न होने से मरीज परेशान। अगर आप नाक, कान और गले के मर्ज में मुब्तला हैं तो DHQ अस्पताल चिन्योट का रुख न करें, क्योंकि जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ENT डॉक्टर सिरे से ही मौजूद नहीं। नाक, कान और गले की मर्ज में मुब्तला मरीज इलाज मुआवजे के लिए शदीद परेशान दिखाई देने लगे। मरीज DHQ अस्पताल की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर हो गए। जी, ENT डॉक्टर तो यहाँ तकरीबन ये ज़िला बनने को 13.5 साल हो गए हैं और 12 साल तक यहाँ कोई ENT डॉक्टर अवेल है ही नहीं है। और जब भी कोई पेशेंट यहाँ तकलीफ में आता है तो जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर DHQ में ENT डॉक्टर जो वो तैनात ही नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से और सेक्रेटरी हेल्थ से ENT डॉक्टर का मुतालबा करते हैं कि वो यहाँ तैनात करें ताकि मरीज़ों को सहूलत हो और मरीज़ अपना इलाज जारी रख सकें। 468 डांगरे से आए हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर सफ़र है। ENT के डॉक्टर नहीं है, देशवारी का मसला बनता है। मेहरबानी की जाए वज़ीर पंजाब तक डॉक्टर का बंदोबस्त किया जाए। मरीजों का कहना था कि ENT डॉक्टर ना होने से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुतालबा किया कि DHQ अस्पताल में ENT डॉक्टर्स की तैनाती की जाए। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन होने की वजह से ENT डॉक्टर की खाली असामियों पर तैनाती नहीं हो सकी। आइंदा मीटिंग में महकमा सेहत हुकाम से गुजारिश करके तैनाती कराई जाएगी। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जंग में शुगर मिल्स मालिकान ने काश्तकारों के करोड़ों रुपए दबा लिए। अदम अदायगी के सबब मिल्स इंतजामिया की जानिब से गन्ने की खरीदारी का अमल भी ताहाल शुरू न हो सका। गन्ने की क्रशिंग शुरू न होने से काश्तकार परेशान। तोबा रोड पर वाक़े शुगर मिल्स की जानिब से मेहनत कश किसानों को करोड़ों रुपए की अदायगियां नहीं हो सकी, जिसके सबब शुगर मिल में इस साल गन्ने की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी और न ही गन्ने की क्रशिंग का अमल शुरू हो सका, जिस पर काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। जिला इंतजामिया ने नादहिंदा शुगर मिलों के बारे केन कमिश्नर से राब्ता कर रखा है। केन कमिश्नर की जानिब से मौसूल होने वाली हिदायत के बाद ही शकरगंज में गन्ने की खरीदारी और क्रशिंग शुरू हो जाएगी। ताहम क्रशिंग शुरू न हुई तो गन्ने की कटाई वक्त पर नहीं हो सकेगी, जिससे गंदम की बवाई में भी ताखीर होगी। जी, हम बहुत परेशान हैं कि दूसरी मिलें चल गई हैं, तो अगर हम उधर गन्ना लेके जाएं तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इस मिल को जल्दी चलवाना चाहिए, क्योंकि अगर गन्ना नहीं निकलेगा तो हम ये गंदम कैसे काश्त करेंगे। गंदम की पशेती काश्त से गंदम की पैदावार में वाज़े कमी का भी अंदेशा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी। उधर किसान कीमतों में पे दर पे इजाफे से परेशान। गंदम की काश्त करना मुश्किल होने लगा। मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में।
गंदम की काश्त का सीजन शुरू होते ही नाजायज मुनाफाखोर माफिया ने खाद महंगी करना शुरू कर दी, जिससे किसानों के मसाइल और बढ़ गए हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है तो दूसरी तरफ इसकी कीमतों में आज खुद इजाफा भी किया जा रहा है। महंगी हो रही है जी, DAP भी महंगी है तो यूरिया ही महंगी हो गई है। गरीब बंदे की कर से, ना आटा लभदा खावन नू, ना सब्जी लभदी है खावन नू, जेबे पैसा कोई नहीं तो खादा किथों लैके पाइए। खाद कंपनियों ने भी कीमत में इजाफा कर दिया है। इस सूरत हाल में किसान रहनुमाओं का मौकफ है कि बहुत से किसान बगैर खाद के ही गंदम काश्त करने पर मजबूर हैं, जिससे पैदावार में कमी का अंदेशा है। किसान कहते हैं कि इन हालात में काश्तकारी करना एक मुश्किल पेशा बनकर रह गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वाले अफराद की खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वाले अफराद की आजकल शामत आई हुई है। 18 नवंबर से शुरू होने वाली मुहिम के दौरान 4000 चालान किए जा चुके हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 200 मुकदमात और 11 गाड़ियां बंद कराई गई हैं। पुलिस फैसलाबाद 24 घंटे कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद हशाम भट्ट का कहना था, वालिदैन 18 साल से कबल बच्चों को ड्राइविंग हरगिज न करने दें। कम उम्र बच्चे पर मुकदमा दर्ज होने से मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। उसमें तकरीबन हमने 201 से ज़ायद FIRs का अंदराज किया। ऐसे तमाम कम उम्र ड्राइवर्स और ऐसे अफराद के खिलाफ जो बगैर लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे थे, और उसमें हमने 4000 से ज़ायद गाड़ियों के चलान किए हैं, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वगैरह। इसके अलावा दीगर कार्रवाइयों में जो है हमने 1000 से ज़ायद, तकरीबन 1100 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो बंद की हैं। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के सेंटर्स से 24 घंटे लाइसेंस बनवाया जा सकता है। कैमरामैन जुनैद अहमद के साथ तो ये मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। थानों को स्पेशल थानों में तब्दील करने के दावे हवा बुर्द हो गए। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। थानों को स्पेशल थानों में तब्दील करने के दावे हवा बुर्द हो गए। फैसलाबाद का थाना मंसूराबाद खस्ता हाली का बदतरीन नमूना बन गया। थाना मंसूराबाद के तफ्तीशी अफसरान दुकानें किराए पर लेकर सरकारी अमूर सरंजाम देने पर मजबूर हो गए। कि प्राइवेट बिल्डिंग में वाक़ थाना मंसूराबाद में तफ्तीशी अफसरान के लिए कमरे ही मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसरान ने थाना के करीब दुकानें किराया पर हासिल कर ली। तफ्तीशी अफसरान दुकानों का किराया भी अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसरान के किराया जेब से अदा करने की वजह से करप्शन में भी इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ ये मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में कहीं जराइम की वारदातें कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयां तो कहीं बोगस मुकदमात की भी बाज़ गश्त। तफसीलात जारी है इस रिपोर्ट में। की बाज़ गश्त सुनाई थी। रवा साल 283 ज्यादती के मुकदमात में से 54 झूठे साबित होने पर खारिज कर दिए गए। फैसलाबाद में ज्यादती के 62 मुकदमात ताहाल ज़ेर तफ्तीश है। 26 के नामुकम्मल और 121 मुकदमात के मुकम्मल चालान अदालतों में जमा करा दिए गए। अदालतों में 40% ज्यादती मुकदमात के मदियान ने बयान देकर सुलह कर ली। 7 मुकदमात में मुल्जिमान इश्तिहारी करार पाए। उधर FIA कंपोजिट सर्कल ने घोना जिला फैसलाबाद में कार्रवाई करते हुए स्मगलशुदा तेल के गोदाम पर छापा मारकर 22 लाख से जायद मालियत का 10,000 लीटर तेल बरामद कर लिया। मुल्जिम मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार करके गोदाम को सील कर दिया गया। मुल्जिम मोहम्मद आसिफ तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस पाया गया। जबकि टोबा टेक सिंह में थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वसीम ओल्ड डकैत गैंग के 5 मुल्जिमान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से एक ट्रैक्टर, 7 लाख रुपए नकदी, नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में वसीम, जुल्फिकार उर्फ घोगी, यूसुफ, बिलाल, मोहम्मद ज़िशान शामिल हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान डकैती और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातें करने का इंकशाफ किया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जंग की बिहारी कॉलोनी में सीवरेज के मसाइल के बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। डिस्पोजल बंद होने के बाद सीवरेज का मसले को संगीन हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी शहर की सफाई में नाकाम हो गई। सैटेलाइट टाउन डिस्पोजल स्टेशन बंद होने से झंग की बहारी कॉलोनी में सीवरेज के मसाइल से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अरसा दराज से सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। गंदगी के बायस शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के सामने कचरे के अंबार ने माहौल ताफुन ज़दा कर दिया। सीवरेज और सफाई की वजह से जो बुनियादी मसाइल हैं सेहत के, वो इस इलाके को बहुत ज़्यादा दरपेश हैं। डेंगू के मसाइल हैं, मलेरिया के मसाइल हैं, और ये जो आपने सीन देखा है ये 3 साल से इसी तरह है। और बाब इख्तियार से यही है कि ख़ास तौर पर सैटेलाइट टाउन पे और यहाँ का जो डिस्पोजल है उसके ऊपर नज़र करम करें, ताकि ये सैटेलाइट टाउन की आबादी वाले लोग जो है ना सुकून का सांस ले सकें। शहरियों का मजीद कहना है कि सैटेलाइट टाउन म्यूनिसिपल कमेटी का अमला लंबी तान कर सो गया। मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दी हैं मगर सुनवाई नहीं हुई। पहले ये साल ग्राउंड में पानी इकट्ठा होता था, अब इन्होंने अभी इधर स्कूल के सामने खड़ा कर दिए। तो ये काफ़ी बार एप्लीकेशनें दी हैं लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबाई मौसम को दी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के TMS सबको दी है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। आते हैं थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर बेसिक जो है ना वो सही काम नहीं कर रहे।
शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से सूरत-ए-हाल पर नोटिस लेने और सीवरेज मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी। ख़वातीन पर तशद्दुद का आलमी दिन। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर में ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम करने और ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश। मज़ीद जानते हैं मरियम रज़ा की रिपोर्ट में। ख़वातीन माशरे का अहम हिस्सा हैं और पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से ज़्यादा हैं, लेकिन ख़वातीन पर आए रोज कई तशद्दुद के केसेस सामने आते हैं। आज पूरी दुनिया में ख़वातीन पर तशद्दुद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सोशल वेलफेयर बेसिकली ख़वातीन के जो खिलाफ तशद्दुद 3 फोरम पे काम करता है। एक तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक अथॉरिटी, विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट 2016 के तहत इस्टेब्लिश हुई और वो पूरे पंजाब में इस वक्त काम कर रही है। तो कहीं से भी उसका एक टोल फ्री नंबर है, तो 1743, और उस पर आप कॉल करते हो तो वो कहीं से भी किसी भी खातून के खिलाफ किसी किस्म के तशद्दुद है, चाहे वो माली है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सेक्सुअल है, तो वो रिपोर्ट कर सकती है, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सोशल वेलफेयर में ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम करने और ख़वातीन को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश है। इस मौका पर सोशल वेलफेयर के डिविजनल डायरेक्टर मुजम्मिल यार कहते हैं, ख़वातीन हमारे माशरे का अहम हिस्सा है। ख़वातीन को मुस्तहकम, मजबूत और बाहुनर बनाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तशद्दुद को कम करने के लिए दूसरा जो फैक्टर है वो विमेन एम्पावरमेंट है। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि उनको हम डिसीजन मेकिंग में और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। तो वहाँ पे भी सोशल वेलफेयर का अपना इदारा सनज़ार मौजूद है। तो जहाँ हम तशद्दुद के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी रोकथाम के लिए हम जो है वो सोशल वेलफेयर अपने मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ काम कर रहा है। दारुल अमान एस्टैब्लिश है, सनज़ार काम कर रहा है। ख़वातीन जिंदगी के हर रूप में अपना किरदार अदा कर रही हैं और हमें माशरे में ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद और नाइंसाफ़ी पर रोकथाम करने के इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन टीम के हमरा मरियम रज़ा, सिटी 41, फैसलाबाद। रोज़ा फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल मुकम्मल अदबी रंग बिखेरने के बाद इख्तिताम पजीर। मुल्क के नामवर अदीब, अदाकार, लिखारी, मुहक्किकीन, मौरखीन और सहाफ़ियों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अली दारो। एग्जाम्पल हमारे यहाँ में लगता है ओहो इखलाकियात का जनाजा निकल रहा है, टिकटॉक पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई डोंट बिलीव दैट। आई फील इट्स एन आउटलेट। लोग कर रहे हैं, अब मासूमियत से कुछ बना रहे हैं, कुछ शातिरपने से बना रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ बेहुदा बना रहे हैं। पूरी दुनिया में टिकटॉक को तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो जस्ट दैट लैक ऑफ वैरायटी आई फील। 2 रोज़ा फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के पहले रोज 3 सेशंस मुनक्किद किए गए, जबकि दूसरे रोज के सेशंस में बयादे शौकत सदीकी, पंजाब दे 2 महाराजे, किताबों की रूनमाई, सूदो ज़िया के दरीचों से हवा भी सांस लेती है, द स्माइल स्नैचर, सारिस क्रेन अपने ख्वाबों में से उड़कर जा चुके हैं, पंजाबी लिखता दे जो के रूप, उम्मीद की किरण या लम्हा फिक्रिया, सोशल मीडिया सहाफत का नेमुल बदल, टीवी ड्रामा और नए इम्कानात शामिल थे। दूसरे रोज के 10वें और 11वें सेशन ने खूब माहौल गरमाया। सोशल मीडिया और ड्रामा के हवाले से पैनलिस्ट ने बेहतरीन गुफ्तगू करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। 10वें सेशन के पैनलिस्ट में डॉक्टर रसूल बख्श रईस, अरीबा शाहिद, वजाहद मसूद और खलीक हारिस शामिल थे। जो अर्बनाइजेशन है उससे किस किस्म की जिंदगी पैदा हुई है, वो एक मटीरियल कंडीशंस तब्दील हुई तो उससे मुआशरत तब्दील हुई। अगर आप ये समझते हैं कि चूंकि आप फैसलाबाद में बैठे हैं या लाहौर या मुल्तान में बैठे हुए हैं और अगर आप सनती और अर्बनाइज मुआशरा पैदा करते हैं तो वो वैसे असरात पैदा नहीं होंगे, ये आपकी गलतफहमी। As far as tampering and things of the sort go, in the past what would happen is अगर किसी के पास खबर होती थी, they would reach out to a journalist और उनको बताते थे ये मेरे पास ये खबर है, आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। अब वो बंदा खुद ही सोर्स बन गया है। मैं फख्र से कहा करता था कि एमए उर्दू एवरेज जो है पाकिस्तान का, उससे ज़्यादा उर्दू लिटरेचर इसने पढ़ रखा है। उसने अब्दुल्ला हुसैन को पढ़ा हुआ है, इंतजार हुसैन साहब को पढ़ा हुआ है, लेकिन अब वो सारा वक्त हंसता रहता है। दूसरे रोज का 11वां और आखिरी सेशन टीवी ड्रामा और नए इम्कानात से मंसूब था, जिसके पैनलिस्ट में बहरोज सब्जवारी, सरमद खुसट, डी गुल, शीबा आलम, असगर नदीम सैयद, ड्रामा काबली पुलाव के राइटर जफर मिराज शामिल थे। पैनलिस्ट ने ड्रामा और दौरे हाजिर में पेश मुश्किलात पर बेहतरीन तबसरा किया। सच बोलना है ये एक जुमला है, उस सच के पीछे कितने रिवायात हैं, कहाँ तक जाना है। पर्दा एक हुक्म है, लेकिन मेरे यहाँ मसला ये कि मेरे यहाँ तो दीवारें भी नहीं है, तो मैं किस चीज़ का पर्दा करूँ। ड्रामे के अहकामात नए क्या होंगे कि आपको दिखाया क्या जाए। ये चॉइस लेने की ताकत कुछ लोगों के पास रहती है हमेशा कि आपको ये दिखाया जाए जो कि शायद आप न देखना चाहते हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर काबली पुलाव इतना हिट है और मिलियंस ऑफ लोग उसको देखते हैं तो वो यही देखना चाहते हैं।
فوڈ چین ہوتی ہے مجھے لگتا ہے وہ ایکو سسٹم کا ایک بنیادی ایک کلاسیفیکیشن ہے. اور آپ چاہے فلم کی بات کریں, چاہے ہم پی ٹی وی کے زمانے سے اس کو شروع کریں, اس میں کہیں نہ کہیں پاور فگرز, اتھارٹی کنٹرول کرنے والے, سپورٹ کرنے والے, اس کو پنپنے میں, اس کی نگہداشت میں ایک ایکٹیو رول ادا کرنے والے, وہ سب لوگ مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. یہ کہانی بالکل بدل گئی ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کامیڈی کون سی چاہیے ہماری آڈینس کو, کیونکہ آڈینس کا قصور نہیں ہے اس میں, ہمارا قصور ہے. دیکھیے ہم جو دیں گے پبلک وہ لے لے گی, کیونکہ آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن کے علاوہ کون سا انٹرٹینمنٹ ہے ہمارے ملک میں. فیصل آباد لٹریری فیسٹیول 2 روز جاری رہا, جس میں ادبا, شعراء, مصنفین, اداکار, صحافی, مورخین, محقق, سیاستدان, بیوروکریٹ سمیت سول سوسائٹی نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. کیمرہ مین محمد عثمان, عبد الرحمان, شہزیب علی, محمد زبیر, اشفاق بخاری, ساتھی رپورٹرز خلزہ لیاقت اور مریم رضا کے ساتھ محمد علی نارو, سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز مشہور ادباء, کالم نگار, فنکار اور سیاسی سماجی شخصیات, اداکار, صحافی اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت. کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں, یہ نہ سمجھے کہ آہ کرتا ہوں, اتنی آزادی بھی غنیمت ہے, سانس لیتا ہوں, بات کرتا ہوں. نصرت فتح علی خان ایڈیٹوریم فیصل آباد میں لٹریری فیسٹیول کے دوسرے روز کے پہلے سیشن میں بیعاد شوکت صدیقی کے حوالے سے مذاکرہ ہوا. پینل میں محمود شام, ڈاکٹر انوار احمد, ڈاکٹر نبیہہ عارف, ڈاکٹر ضیاء الحسن شامل تھے. دوسرے سیشن میں پنجاب دے 2 مہاراجے کے موضوع پر ڈاکٹر خوال چیمہ, پیٹر بینس نے بریفنگ دی. یہ تو ناول کی طاقت ہوتی ہے کہ ایک پر اسرار جو فضا ہے, مسٹری ہے, وہ بھی قائم رہے اور اس کے اندر سے حقیقت بھی جھانک رہی ہو اور حقیقت بھی دکھائی دے. تو میں سمجھتا ہوں مسلسل ایک یہ ناول اپنے پہلے چیپٹر سے آخری تک یہ اس میٹافر کے اندر ہے, لیکن اندر سے حقیقت آپ کے اوپر جھپٹ رہی ہے. تیسرے سیشن میں مختلف کتابوں کی رہنمائی کی گئی. محمود شام, انوار احمد, نبیہہ عارف, حمید شاہد اور شیبہ عالم نے مختلف کتابوں پر تبصرہ کیا اور تعارف بیان کیا. مکالمہ سوزیوں کے دریچوں سے کالم نگار نور الہدیٰ شاہ اور اصغر ندیم سعید نے مکالمہ کیا. دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دھوکہ نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ آب زر کم عیار ہوگا. اقبال نے 116 سال پہلے کہہ دیا تھا, مگر ہمارے حکمرانوں, بادشاہوں کو تو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے اور نہ ہی وہ تاریخ سے سبق لیتے ہیں. سینیٹر رضا ربانی اور حارث خلیل نے چھٹے سیشن میں دی اسمائل سنیچر کے عنوان پر گفتگو کی. ایک اور سیشن میں مظہر الاسلام اظہر ندیم نے ناول سارس کرین اپنے خوابوں سے اڑ کر جا چکے ہیں پہ مذاکرہ کیا گیا, جبکہ ایک اور سیشن میں پنجابی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. پینل میں ثروت محی الدین, نیلم احمد بشیر, زاہد حسن شامل تھے. قلم میں چاہے جتنی طاقت ہو, وہ کسی بھی حقیقت کو پوری طرح لکھ لینے پر قادر نہیں ہوتا. اسے ایک حد تک ہی گرفت میں لیا جا سکتا ہے. یوں تحریر سے باہر رہ جانے والی حقیقت مرتی نہیں, لکھنے والے کو ہمیشہ بے چین رکھتی ہے. لٹریری فیسٹیول کے 9ویں سیشن میں امید کی کرن یا لمحہ فکریہ عنوان پر گفتگو کی گئی. پینل میں ظفر مسعود, ڈاکٹر خرم طارق شامل تھے, جنہوں نے ملکی اور معاشی صورتحال پر بریفنگ دی. کیمرہ مین محمد عثمان, شاہزیب, عبد الرحمان اور ساتھی رپورٹر علی نارو کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی کی فیصل آباد لٹریری فیسٹیول میں شرکت. اپنے ناول دی اسمائل سنیچر کا تعارف, متن اور اختتامیہ بیان کیا. ادب کی اہمیت پر خصوصی گفتگو بھی کی. رپورٹ کر رہے ہیں علی نارو. فیصل آباد لٹریری فیسٹیول میں ملک کے نامور سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رضا ربانی نے خصوصی شرکت کی. لٹریری فیسٹیول کے دوسرے اور آخری روز چھٹے سیشن کو سینیٹر رضا ربانی کے ناول دی اسمائل سنیچرز کے عنوان سے منسوب کیا گیا. پینلسٹ میں رضا ربانی اور حارث خلیق شامل تھے. ادب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر رضا ربانی کا کہنا تھا, ادب اور محنت کش کا تعلق ریاست نے توڑا. ریاست نے ادب, طلباء اور محنت کش کو ٹارگٹ کیا. محنت کشوں کی تحریکوں کو بڑے منظم انداز میں ختم کیا گیا. The car comes to a stop before a garage with brown shutters that are drawn down. To the right is the main entrance of the house, while on the left are rickety wooden steps leading up to his studio, which is situated at a tree level where the light is plentiful.
शुरका ने रजा रब्बानी से मुल्की मसाइल और हालात हाजरा से मुतल्लक सवालात भी किए। एक सवाल का जवाब देते हुए इनका कहना था कि सियासतदान कभी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर ऐसा हो जाए तो अलग अलग पार्टियों का तस्वर ही खत्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान जो हैं वो कभी इकट्ठा नहीं होते। अगर सियासतदान इकट्ठे हो जाएं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस बात पे यकसुई होनी चाहिए कि पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती हो और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम जो है वो हमेशा कायम और दायम रहे। सेनेटर रजा रब्बानी के नावल द स्माइल स्नेचर्स के हवाले से शुरका ने तबसरा भी किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद।